اور یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سلام ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ آئے زوردار تعلیم بجائیں، پریز گاڈ، زوردار تعلیم، پریز گاڈ، یس پریز گاڈ، تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر زبور 33 نکالیے، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور 33 یعنی 33واں زبور، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ آمین۔ آئیں خدا کے کلام کے لیے تعلیم دیں۔ God bless you all۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ God bless you all۔ آج پھر سے ہمیشہ کی طرح ہم نے خدا کے کلام میں سے بڑا خوبصورت حوالہ پڑھا، زبور نویس بڑی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ سنیں، یعنی وہ تمام لوگ خدا کی نظر میں ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ بلیورز، ایماندار لوگ، خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ، زندہ خدا پر یقین رکھنے والے لوگوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ خدا کی نگاہ ان پر ہے، خدا کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، یعنی جو خدا کی محبت کے طلبگار ہیں، جو خدا کی ہمدردی کو چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ اور پھر کہتا کہ وہ ان کی جان کو موت سے بچائے اور قحط میں یا قحط کے دنوں میں ان کو جیتا رکھے۔ اور پھر آگے کہتا کہ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ آمین۔ تمام لوگوں کی بات کرتا ہے، میری نہیں کہہ رہا، اپنے اکیلے کی بات نہیں کر رہا، ساری جماعت کی بات وہ کرتا ہے، تمام بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ خدا کی نگاہ میں ہیں، خدا کی نگاہ ان پر ہے۔ اور زبور 101 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی جو نگاہ ہے، زبور 101 اس کی آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی نگاہ جو ہے ایمانداروں پر ہوگی۔ زبور 101 اس کی آیت نمبر 6 لکھا ہے کہ خدا کی نگاہ ایمانداروں پر ہوگی۔ اور پھر وائز کی کتاب میں لکھا ہے 5ویں باب کی 8ویں آیت، 5ویں باب کی 8ویں آیت وائز کی کتاب، وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پر، غریب پر، مسکین پر نگاہ نہ کرے، لیکن سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ ایک ہے، لکھا ہے کہ ایک بڑوں کا بڑا ہے
कोई इंसान किसी पर निगाह करे या ना करे, मगर वो कहता है कि एक बड़ों का बड़ा है, खुदा यानी जो सबसे बड़ा है, उसकी निगाह मिस्कीनों पर है, उसकी निगाह उसके चाहने वालों पर है, उसकी निगाह उन पर है जो उस पर यकीन रखते हैं। वो सारे लोग जो खुदा से डरते हैं, खुदा की निगाह उन पर है, यानी वो खुदा की नजर में है। वो सारे लोग जो उस पर यकीन रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, वो हर एक पर अपनी निगाह को रखे हुए है। उस वक्त भी और आज भी जितने लोग इस रूए जमीन पर खुदा से डरते हैं, जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, वो सारे लोग खुदा की निगाह में हैं। उन तमाम लोगों पर खुदा की निगाह है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, बहुत बार इस जमीन पर जब हम रहते हैं तो हम सब जानते हैं कि जमीन पर रहने वाला जो इंसान है उसके हालात एक जैसे नहीं होते। अप एंड डाउन जो है इस जमीन पर हमारी जिंदगियों में आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हालात जो है वो ठीक नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीमारियों में गिर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बहुत बार हालात ऐसे हो जाते हैं, यहां तक कि बहुत बार बहुत से लोगों पर ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान भी जो है वो छोड़ देते हैं, इंसान जो है वो निगाह नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम इस बात की यकीन दहानी कराता है, खुदा का खादिम ज़बूर नवीस इस बात की यकीन दहानी करता है, यकीन दहानी कराता है कि खुदा के चाहने वालों के हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, खुदा के चाहने वाले खा किसी मुश्किल ही में क्यों ना घिर जाएं, वो हमेशा खुदा की निगाह में रहते हैं। कोई इंसान उन्हें देखे या ना देखे, कोई इंसान उन्हें पूछे या ना पूछे, मगर उनका खुदा उन पर हाथ को फैलाता है। उनके खुदा की निगाह हमेशा उन पर रहती है। वो अपने चाहने वालों को, वो जो उससे डरते हैं, उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता। वो उन्हें थामे रहता है, वो पकड़े रहता है, वो हर किस्म के हालात में उनके साथ होता है और उसकी निगाहें हमेशा उन पर लगी रहती है। जो खुदा से डरते हैं वो खुदा की निगाह में है। जो खुदा से डरते हैं, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जो कादरे मुतलक खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा की निगाहें हमेशा उन पर लगी रहती हैं। खुदा हमेशा उन्हें देखता रहता है, वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया, वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। शायद हमें लगता है, शायद हमें बास का लगता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है, लेकिन नो, ऐसा नहीं होता। खुदा हमारे साथ होता है, उसकी निगाहें हम पर लगी रहती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हालात बुरे भी हो तो उन हालात में से भी हमारे लिए कुछ अच्छा पैदा करता है, हमें कुछ अच्छा सिखाता है। जैसे पौल कहता है कि हमें मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। आमीन। खुदा की निगाहें अपने लोगों पर हमेशा मरकूज रहती है, यानी जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं, जिन्हें खुदा की
मोहब्बत की, जिन्हें खुदा की शफकत की उम्मीद है, जो खुदा की हमदर्दी और खुदा की शफकत की उम्मीद रखते हैं, वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता। और होशिया की किताब में लिखा हुआ 12वें बाब की 6 आयत, होशिया की किताब देख सकते हैं, होशिया 12:6, वहां पर लिखा है कि हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। आमीन। होशिया की किताब 6:12 आगे आ जाए बेटा। होशिया 12:6 में लिखा हुआ है, बस तू अपने खुदा की तरफ रजूला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। आमीन। नेकी और रास्ते की तलाश में रह, और नेकी और रास्ते की तलाश में रहने वाले लोग, यानी खुदा पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं, वो हमेशा खुदावंद पर उम्मीद रखते हैं, वो हमेशा खुदावंद के उम्मीदवार होते हैं। यानी वो खुदा के बारे में सोचते हैं, खुदा के बारे में जानते हैं और भरोसा रखते हैं कि अगर हम हालात बुरे भी हो जाएंगे तो भी हमारी उम्मीद जो है वो खुदावंद में खत्म नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा खुदावंद में उम्मीदवार रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि खुदा सदाकत और सच्चाई का खुदा है। और वो जानते हैं कि खुदा सच्चा है, खुदा रास्त है, इसलिए वो जरूर हमारे लिए, जब हम उस पर निगाह रखेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, जब हम उस पर उम्मीद रखेंगे, तो जरूर वो अपना हाथ बढ़ाकर मसाइल को ढांक देगा, जरूर वो अपना हाथ बढ़ाकर कमजोरियों को खत्म कर देगा। वो झिड़केगा, वो डांटेगा और वो उसके कहने से खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, वो नहीं रहेगी। हमेशा खुदावंद अपने खुदा का उम्मीदवार रह, ताकि वो उनकी जान मौत से बचाए, ताकि वो उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे, ताकि वो उनकी जान को मौत से बचाए और कहत में उन्हें जीता रखे। ज़बूर 103 में भी लिखा हुआ है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। ज़बूर 103, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वो जो उस पर उम्मीद रखते हैं, वो जो उससे डरते हैं, वो जिनके अंदर उसका खौफ है, खुदा उन्हें वक्त से पहले हलाक होने नहीं देता, बल्कि वो हलाक होने वाली वबाओं को, हलाक होने करने वाली बीमारियों को, मार डालने वाली बीमारियों को, खौफ को, हरास को झिड़कता है, डांटता है और खौफ को हरास दूर हो जाता है। वबा जो हलाक करने के डर पे होती है, खुदा जब कहता है तो वबा अपना रुख मोड़ लेती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि खुदा ने झिड़का है, इसलिए वो चली जाती है, वो नहीं रहती। और उसका डरने वाला, उसका चाहने वाला जीता रहता है, क्योंकि उसके मालिक ने, खुदा ने मौत को डांट दिया है, वबा को डांट दिया, इसलिए वो चली गई है, क्योंकि उसने डांटा। लिखा है ताकि वो हमारी जान को मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। और आप जानते हैं खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे हवाले हैं हमें मिल जाते हैं जब खुदा ने कहत साली के आलम में, जब खुदा ने कहत में अपने लोगों को जीता रखा, अपने लोगों को जीता रखा। पैदाइश की किताब आप जानते हैं, जब खुदा का बंदा यूसुफ जेल में था, कैद में था, तो 7 साल तक वहां पर कहत पड़ा और खुदा ने उस कहत के दौर में अपने लोगों को, बनी याकूब
यकूब को और उसके घराने को उस कहत में मरने नहीं दिया। उस कहत में खुदा ने भूखों से फाकों से उन्हें हलाक होने नहीं दिया, बल्कि उनके आगे अपने बंदा को यूसुफ को भेजकर उनके लिए इंतजाम कर रखा ताकि वो कहत में उन्हें बचाए रखे। को बहुत सारे और बच गए, लेकिन खुदा ने अपने चुने हुओं को, हम सीख रहे हैं कि खुदा से डरने वाले लोग जो खुदा से डरते हैं, खुदा की निगाह हमेशा उन पर रहती है, खुदा उन्हें नहीं छोड़ता। कहत के उस दौर में जब उस जमीन पर कहत था, कहत के उस आलम में, कहत के उस वक्त में खुदा ने अपने लोगों को बचाए रखा, खुदा ने उन्हें जीता रखा, खुदा ने उन्हें संभाले रखा। खुदा कहत में भी अपने लोगों को जीता रख सकता है। और फिर हमने पढ़ा है कि हमारी जान को खुदावंद की आस है, हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। और खुदा का कलाम इस बात की बार बार गवाही देता है, खुदा का कलाम बार बार इस बात को बयान करता है कि जो लोग खुदा पर आस रखते हैं, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, जिनकी नजरें जिंदा खुदा पर लगी रहती हैं, जिनकी नजरें इंसानों पर नहीं, सोर्सेस पर नहीं, बल्कि खुदा पर रहती हैं, उनका जिंदा खुदा उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता, बल्कि वो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता है, बल्कि वो उनकी जरूरियात को पूरा करता है, वो उनकी मुरादों को पूरा करता है, वो उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता। हमारी आस खुदावंद पर है, और जो खुदावंद पर आस रखते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद पर आस रखने वाले लोग हमेशा उनकी आसें जो हैं खुदा पूरी करता है, उनकी उम्मीदें हमेशा खुदा पूरी करता है, उसी से हमारी कुमक है। और जब हम उसके बेटे यीशु की बात करते हैं तो वो हर तरह के हालात में, जब हम कहत की बात कर रहे हैं, जब हम कहत की बात कर रहे हैं तो वो हर तरह के हालात में हर एक चीज को मुहैया कर सकता है। जब उसने 5000 को खाना खिलाया था, जब उसने 4000 को खाना खिलाया था, तो कहाँ पर थे वो? वीराने में थे। सुने इधर, हम कहत की बात कर रहे हैं, वो वहां पर कहत नहीं पड़ा था, लेकिन वो वीराने में थे। महज थोड़ी रोटियां और थोड़ी मछलियां वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यीशु मसीह उस वीराने के अंदर, यीशु मसीह उस वीराने में, उस बेयावान में, उस जंगल के अंदर जहां पर थोड़ी सी रोटियां मौजूद हैं, अपने इख्तियार से, अपनी कुदरत से दुआ करता है तो ब्लेसिंग चाहता है, बरकत चाहता है। जब दुआ करता है, ब्लेस करता है, तो थोड़ी सी रोटियां और थोड़ी सी मछलियां इतनी ज्यादा बन गई हैं कि हजारों की भूख जो है वो मिट गई है, हजारों की भूख जो है वो खत्म हो गई है। बल्कि वहां पर लिखा है कि कई टोकरियां जो है वो बची हुई उठाई गई है। खुदा और खुदा का बेटा जहां चाहे, जब चाहे, जो मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि पावर और इख्तियार उनके अंदर है। जो कहते हैं वो होता है, जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है। हर एक चीज उसके हाथ में है, वो जब चाहे जो कहे वो हो जाता है, क्योंकि वो इख्तियार से बना हुआ। उसका बाप खादिम कहता है कि वो कहत में हमें जिंदा रख सकता, और उसका बेटा भी थोड़े से बहुत ज्यादा करता। उसका बेटा थोड़ी सी खुराक को बहुत ज्यादा बनाता है और हजारों की भूख मिटाता है। उसका बेटा हमारी कुव्वत और जोर है,
और इस ज़मीन पर हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है उससे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, ताकि उनकी जान मौत से बचाए। हाँ, हम जानते हैं कि जिस्मानी मौत जो है वो हम सब पर आती है अपने मुकर्रर वक्त पर। दो मतलब है इसके, एक तो वो वक्त से पहले मरने नहीं देता, और दूसरी बात यह है कि जिस्मानी मौत तय है मुकर्रर वक्त पर, लेकिन वो हमारी रूहों को मरने नहीं देता, वो हमारी अबदी जिंदगी को महफूज कर देता है, वो हमारी हमेशा की जिंदगी को सेव कर देता है, महफूज कर देता है। वो हमारी रूहों को खत्म होने नहीं देता, बल्कि वो रूहानी जिंदगी को, अबदी जिंदगी को बचा कर रखता है और हमें हमेशा के लिए वो जीता रखेगा। मेरी कुमक खुदा से है, हमारी कुमक खुदा से है। और मुबारक है वो लोग जो खुदा से डरते हैं, उसकी निगाह उन पर है, खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जिनके अंदर उसका खौफ है। जब वो पुकारते हैं तो खुदा उनकी सुन लेता है। कुमक यानी मदद। और कई बार हमने देखा, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में जब खुदा के लोग मसाइल का शिकार हुए, जब उन्होंने खुदा को पुकारा है, जब उन्होंने खुदा के हुजूर दुआ की है, जब उन्होंने खुदा के हुजूर फरियाद की है, खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाकर जवाब दिया है, खुदा ने मदद को भेजा है, क्योंकि खुदा उनकी ढाल है, खुदा उनकी सिपर है। और ऐसे ही आज यीशु मसीह हम सब की ढाल है, सिपर है, कुमक है। वो इब्लीस के साथ हमारे लिए फाइट करता है, वो मेरे और आपके लिए इब्लीस के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो मेरी और आपकी बीमारियों के लिए लड़ता है, उन्हें डांटता है और उन्हें हुक्म देता है, और वो छोड़ देती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हमारी सिपर है, वो हमारी ढाल है, हमारी कुमक उसी से है। इसलिए मेरे अंदर खुदा का खौफ हो, इसलिए मैं खुदा से डरा करूं, इसलिए मैं खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखा करूं, मैं इस बात पर यकीन रखूं कि उसकी शफकत मेरे लिए है, मैं उस पर उम्मीद रखा करूं, मैं ईमान रखा करूं कि वो कहत में भी मुझे जिंदा रखेगा, मैं ईमान रखूं कि वो हमेशा के लिए मेरी रूह को महफूज कर देगा, मैं ईमान रखा करूं कि उसी से मेरी कुमक है, वही मेरा जोर है, उसने मेरा फिदिया दिया है, उसने अपनी जान दी है। और जब मैं मुसीबत में हूँगा, जब मैं पुकारूंगा, तो जिसने जान दी है, जान का नजराना दिया है, वो आएगा और मेरे लिए फाइट करेगा और मुझे मुसीबत से, मुश्किल से, कमजोरी और बीमारी से निकाल देगा। आमीन। आए हम इस ईमान से दुआ करना शुरू करें। आए हम दुआ करना शुरू करें कि हम खुदा से डरते हैं। हम वो लोग हैं ज़मीन पर जो जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, और उस जिंदा खुदा से डरने वाले लोग हैं। और वो जिंदा खुदा इस बात का वादा करता है कि जो उससे डरते हैं उसकी निगाह हमेशा उन पर रहती है। आए सब दुआ करें। अगर आप खड़े होना चाहते हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम लेकर आए, सब बड़े छोटे सब अपनी आंखों को क्लोज करें और दुआ करना शुरू करें। नाउ इट्स टाइम फॉर यू। अब आपके दुआ करने का वक्त है। अब आप दुआ करें।